my dear students, I hope you all are safe and fit at your home. Now we are going to discuss our booklet. So let us start our today's video. So my dear students, let us start our today's worksheet. Today's date is 2nd of September in 2020. So let us start from worksheet number 1st. Observe and write whether the dotted line on each shape represent a line of symmetry. बेटा जी यहाँ पे आप देखिएगा लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बताई है, इट डिवाइड्स इन इक्वल शेप एंड साइज. ये आपके शेप और साइज को इक्वली डिवाइड करती है. तो अब आपको देखना है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री, आप क्या कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए, आपने ये फिगर बनाई, ड्रॉ कीजिए पेज पे और जो लाइन दे रखी है आपको उसके अलोंग उसको फोल्ड कीजिए. अगर वो दूसरी के ऊपर ओवरलैप कर जाती है देन इट इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज इट विल नॉट बी ए लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसे कि फर्स्ट वन इज फॉर द टॉफी. इफ यू रैप दिस टॉफी अलोंग दिस लाइन you will get the same shape. This is the line of symmetry for this. Now this is also the line of symmetry for this. Now it's come about the rectangle. अगर आप rectangle को draw करके देखेंगे, क्या ये rectangle की जो line है, आपको देखने में तो triangle दोनों बराबर लग रहे हैं ना बच्चा, लेकिन जब आप overlap करेंगे इसको तो ये opposite direction हो जाएगी. ये opposite direction होने की वजह से एक दूसरे को same shape नहीं दे पाएगी. So this is not the line of सिमेट्री. लेकिन बेटा जी अगर आप रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड करते हैं, सपोज कीजिए रेक्टेंगल को आप अलोंग दिस लाइन फोल्ड करते हैं, देन इट विल बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री. यू विल गेट द इक्वल स्क्वायर्स. एंड इफ यू विल फोल्ड अलोंग दिस, दिस इज ऑल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री. सो द टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर फॉर रेक्टेंगल, बट अलोंग डायगनली इट इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हमें इक्वल शेप नहीं मिल पाती. This is clearly not the line of symmetry for this. Now you have to draw the line of symmetry for this. इसको हम किस along काटे कि हमारी line of symmetry मिल जाए. अगर हम इसको vertically divide करेंगे we will not get the line of symmetry, so we will divide like this. Now we will divide this along the vertical line of symmetry, and for the circle we can divide along this also, along this also, and along this also. ठीक है. Now for this shape we will divide this shape along this way. अगर हम ऐसे divide करेंगे तो we will not get the line of symmetry for this shape. You have to draw along the line of symmetry. This is a heart and this is like a leaf. This is another shape. Same draw करना है. line of symmetry का मतलब same shape and same size. So this is all about your first worksheet. Now coming to the second worksheet, draw the line of symmetry on the shape below. Some shapes may have more than one line of symmetry. किसी किसी shape में दो से भी ज़्यादा हो सकती हैं. जैसे कि पहला square है एक rhombus type में, तो अगर हम इसको ऐसे divide करें we will get two equal triangles. Similarly we will get two equal triangles. हमें मिल गया. और अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे we will also get two equal rectangles along this line and along this line also. तो देखा 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई है हमारी. For this we will draw only like this or any another also. One more here like this also. The line of symmetry basically बेटा वो चीज़ है जो आपको इक्वल शेप और इक्वल साइज में डिवाइड कर देती है. For the T we have to divide it along the vertical line of symmetry. अगर हम horizontal से करेंगे तो हमें equal shape नहीं मिलेगी. For this we can divide like this or we can divide horizontal also. No, क्योंकि horizontal divide करने से ऊपर तो triangle मिल जाएगा but नीचे हमें triangle की जगह trapezium मिलेगा. For this shape we again draw it horizontally. Vertical is not possible. Now for this दिस इज एन ऑक्टागन 8-sided फिगर. तो हम इसको कैसे डिवाइड करें? हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं. इवन नंबर ऑफ साइड्स हैं इसकी बेटा जी. इसको हम डायगोनली करके देखें, क्या डायगोनली कर सकते हैं हम इसको अलोंग दिस लाइन ऑफ सिमेट्री? यस, वी कैन डायगोनली ऑल्सो डिवाइड दिस वन. We can diagonally also divide this one along this line of symmetry. So it is also having more than 2 line of symmetry. Now write 8 6-digit number which look the same on a half turn.
अब आपको बोला जा रहा है कोई ऐसा 6 डिजिट नंबर बताइए जो हाफ टर्न पर सेम रहे। बेटा जी आपको पता है हाफ टर्न पर सेम रखना है नंबर को हमें, लेकिन हमें हाफ टर्न के लिए ये याद रखना है कि हाफ टर्न पे सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं जो सेम रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? 0, 1 and 8. We have to use only the 3 digits that will remain same on a half turn. तो बेटा जी आप ये याद रखें कि 0, 1, 8 एक ऐसे 3 डिजिट हैं जो कि हाफ टर्न पर सेम रहते हैं। जैसे कि अगर मैं सपोज कीजिए मैं 2 को लेती हूँ, तो जैसे ही मैं इसको हाफ टर्न देती हूँ, हाफ टर्न का मतलब इसका अपोजिट, तो इट बिकेम लाइक 2 हेयर। तो ये तो हाफ टर्न पे सेम नहीं आया, बट इफ आई टेक 1 आई विल गेट सिमिलरली 1। तो आपको इन 3 डिजिट्स को ही यूज करके 6 डिजिट नंबर बनाना है जो हाफ टर्न पर सेम रहे। हम एक बार तो हम ट्रिपल 6 टाइम्स 6 को लेके चल सकते हैं, ऐसे ही 6 टाइम्स हम 1 को भी लेके चल सकते हैं। और वी कैन टेक हाफ लाइक दिस 8, 8, 1, 1, 8, 8। ओके, वी कैन टेक 1, 1, 0, 0, 1, 1 लाइक दिस एंड सो ऑन। हमें सिर्फ ऐसे करना है कि जो सेंटर पॉइंट पे जो डिजिट्स हैं वो हमारे सेम आने चाहिए, लाइक दिस 8, 1, 1, 1, 1, 8। This is also a 6 digit number. Write 4 letters in the English alphabet which reads the same on half a turn. अब हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। देखिए बच्चा, अगर हम A को हाफ टर्न देते हैं तो इट बिकम्स लाइक दिस। ऐसे ही B को अगर हम हाफ टर्न देंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। बट अगर हम O को हाफ टर्न देते हैं इट रिमेन्स द सेम O। ऐसे ही अगर हम I को देते हैं इट रिमेन्स अगेंस्ट द सेम I। सिमिलरली H रिमेन्स H, ठीक है, एंड N बिकेम्स N। तो हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाबेट्स भी हैं जो हाफ टर्न पर सेम रहे, जैसे कि Z ऑल्सो रिमेन्स सेम Z। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्कशीट। Next worksheet is worksheet number 3rd. We have to take on which the same shape we will get after which turn. जैसे हमने स्वास्तिक दिया हुआ है, हाफ टर्न इसको देते हैं। हाफ टर्न का हमेशा याद रखिए बच्चा, 12, 3, 6, 9। दिस इज 1/4 टर्न, दिस इज हाफ टर्न एंड दिस इज अगेन 1/4 टर्न एंड दिस इज अगेन हाफ टर्न। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और अगर 6 की बात आ रही है तो 6 के लिए आपको 6 पोर्शन होने चाहिए। 3 और 6 टर्न के लिए आपके पास फैक्टर होना चाहिए, या तो वो 3 हो, 3 साइडेड फिगर हो, या 6 साइडेड फिगर हो, या 9 साइडेड फिगर हो। देन यू विल गेट हेयर व्हेन यू टर्न इट 1/4 यू विल गेट लाइक दिस। जैसे ही आपने 1/4 टर्न किया तो ये यहाँ आ जाएगी पोजीशन और ये यहाँ। आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि आपको बीच का टर्न देना है। देन यू विल गेट द स्वास्तिक लाइक दिस। आप ड्रॉ करके बच्चा देख सकते हैं। यू विल नॉट गेट द सेम स्वास्तिक। ऑन हाफ टर्न यू विल गेट द सेम, ठीक है। फॉर Z, जैसे ही Z के लिए आपने 1/4 टर्न किया तो Z कैसा हो जाएगा, लाइक दिस। और जैसे ही आपने अगेन टर्न किया इट विल लाइक दिस, एंड अगेन you will turn, it will like this. So on half turn it remains the same. For the next, आप इसको देखिए, अब 1/4 टर्न करेंगे तो ये स्टिक्स कैसे हो जाएंगी, ये स्टिक्स आ जाएंगी ऐसे। These sticks will look like on 1/4, क्योंकि ये यहाँ टर्न होंगे आ गई साइड। जैसे ही आप फिर से इसको हाफ टर्न देंगे ये यहीं आ जाएंगे। दैट मीन्स इट रिमेन सेम ऑन हाफ टर्न। एंड फॉर दिस शेप देखिए, जैसे ही आपने इसको 1/3 टर्न भी दिया, क्योंकि ये 6 साइडेड फिगर है तो हाफ टर्न पे दिया, तो हाफ टर्न से तो ये अपोजिट होके यहीं आ जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने 1/4 टर्न दिया तो ये यहाँ आएगा। ये वाइट पोर्शन कम्स टू द ब्लैक पोर्शन एंड ब्लैक पोर्शन कम्स टू द वाइट। तो 1/4 पे तो सेम नहीं हुआ, हाफ टर्न पे तो सेम हो गया। अब आप 1/3 टर्न देंगे, जैसे 1/3 आपने टर्न दिया 1 and 3rd, तो ये दोबारा से सेम आ जाएगी। तो 1/3 पे भी ये सेम आएगी एंड 1/6 अगेन यू विल गेट द सेम पोजीशन। एंड फॉर द नेक्स्ट फिगर यू विल गेट ऑलवेज द सेम पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफरेंस है ही नहीं फिगर में। In all the 4 turns you will get the same position. Now on the worksheet 4, for explaining the mirror images, I basically take a small mirror for you to explain this concept. You can easily see this mirror.
or any other simple mirror that you are having at your home, you can use that mirror to have a लुक ओवर द मिरर इमेजेस। देखिए बच्चा, आपको सबसे पहले ये फोटोग्राफ दी गई है, आपको ये मिरर इमेज चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको मिरर इमेज में चाहिए क्या। आपको मिरर इमेज में फर्स्ट ट्रायंगल चाहिए, फिर उसके बाद आपने देखा होगा जो सेकंड और थर्ड साइड है ट्रायंगल की, वो हमें हाफ चाहिए। हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए ट्रायंगल का, हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए ट्रायंगल का। तो जस्ट आई विल शो यू अलोंग द मिरर इमेज। तो मैं आपको जगह जगह मिरर रख कर दिखाती हूँ, देन यू विल डिसाइड विच वन इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्टली आई विल कीप माई मिरर ओवर हेयर। देखिएगा बच्चा, जैसे ही मैंने आपके लिए मिरर को देखिए बेटा, मैंने अगर बीच में मिरर रखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हाफ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और इधर भी हाफ को हाफ ट्रायंगल, तो इट विल मेक ए कंप्लीट ट्रायंगल। लेकिन हमें तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रायंगल नहीं चाहिए था, हमें तो इमेज में क्या चाहिए कि दोनों साइड्स हाफ हाफ आए। तो आई विल अगेन कीप एट अनदर पोजीशन। तो मैं थोड़ा सा आगे इस पॉइंट पे रख के देखूं, जो ये पॉइंट है, क्योंकि अगर मैं लास्ट में रखूंगी तो यू कैन इजीली से कि मैम हमें तो सेम ही ट्रायंगल की शेप दिखाई दे रही है, लेकिन हमें तो ऐसा ट्रायंगल चाहिए ही नहीं था। तो हमें तो ट्रायंगल कैसा चाहिए बच्चा, ऐसा ट्रायंगल चाहिए। तो आई विल कीप एट दिस पॉइंट। नाउ आई विल कीप ऑन दिस पॉइंट। व्हेन आई कीप ऑन दिस पॉइंट यू कैन सी दैट द सेम शेप वी गेट अलोंग दिस पॉइंट। हमें दो साइड्स की हाफ हाफ साइड दिखाई दे रही हैं और एक कंप्लीट साइड दिखाई दे रही है हमारे मिरर में, एंड वी आर गेटिंग द सेम पिक्चर एज देयर इन द बुकलेट। सो वी विल कीप द मिरर अलोंग दिस पॉइंट। दिस इज द पॉइंट, वी विल मार्क इट and we will draw a mirror sign over here. We will keep the mirror over here. Now coming to the next position. Now सबसे पहले आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको चाहिए क्या। आप देखिए बेटा कि आपको इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, एक आपको यहाँ छोटा स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक यहाँ। तो आपको ओरिजिनल पिक्चर में स्क्वायर कहाँ दिखाई दे रहा है, यू कैन सी हेयर। तो यानी कि मुझे अगर यहाँ स्क्वायर चाहिए तो मुझे ये स्क्वायर चाहिए मिरर इमेज में। उसके बाद यू कैन सी 1 लेग हेयर एंड 1 लेग हेयर। तो अब आप इधर देखेंगे तो यहाँ तो 2 की 2 लेग सेम डायरेक्शन में, बट यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स वी डोंट रिक्वायर दिस लेग, क्योंकि मिरर इमेज जो है अपोजिट तो अपने आप कर देती है ऑटोमेटिक। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाली लेग चाहिए, हमें ये लेग नहीं चाहिए। तो हमें पता लग गया बच्चा कि ये पोर्शन चाहिए और ये पोर्शन चाहिए। वी डोंट रिक्वायर द लेफ्ट वन पोर्शन, सो वी विल यूज द मिरर एंड कीप इट ऑन द मिडल ऑफ द शेप and see whether the direction is okay or not. I will keep the mirror here and you can see. You are getting the picture same as picture in the booklet option. देखिए बच्चा, आपको सेम पिक्चर मिल रही है या नहीं मिल रही। आप दोनों को ज्वाइन करके देखिए, जो मिरर इमेज है जहां आपकी हाफ पिक्चर दिखाई दे रही है और जो आपकी कंप्लीट ऑप्शन पिक्चर है, you are getting the same one. So where we will keep the mirror? We will keep the mirror in between the shape. So I will mark here the mirror sign. Now in the next picture, have a look. We are able to see only the tail portion. Tail portion दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ इतना। आपको ना कोई लेग चाहिए, ना कोई आपको फेस वाला स्क्वायर चाहिए। तो दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड ओनली दिस पोर्शन। तो हमें आगे का पोर्शन तो चाहिए ही नहीं। तो अब हमें अगर ये पोर्शन चाहिए तो बच्चे, जैसे ही मैं इस पोर्शन के अलोंग मिरर को रखूंगी तो आपको कैसी इमेज दिखाई दे रही है, इस पोर्शन के अलोंग आपको एक स्टेयर टाइप में दिखाई दे रहा है ना। तो वी डोंट रिक्वायर दिस वन, वी ओनली रिक्वायर द टेल पोर्शन। तो इफ आई विल कीप द मिरर ओवर हेयर, टेल पोर्शन के अलोंग मैंने मिरर को रखा, तो डू आई गेट द सेम पोजीशन एज इन द बुकलेट ऑप्शन? यस, आई गेट द सेम पोजीशन। लुक in the mirror and in the portion. So I will mark the mirror portion over here. I keep the mirror here to get the position. Now in the last one you are able to see that कि बेटा हमें एक V शेप मिली है, लेकिन यहाँ पर तो कोई V शेप नहीं है। आप देखेंगे एक छोटा सा क्यूबिकल बॉक्स हमें सेंटर में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी क्यूबिकल बॉक्स नहीं है। हमें ये अपर पार्ट वाला क्यूब नहीं दिखाई दे रहा, हमें सिर्फ लोअर पार्ट वाला क्यूब दिखाई दे। सो वी डोंट रिक्वायर द अपर वन पार्ट, बट वी कैन चेक थ्रू द मिरर। सो बेटा जी देखिए, अगर मैं इसके अलोंग अपनी मिरर को रखती हूँ अलोंग दिस डायरेक्शन, तो आई एम नॉट गेटिंग द सेम एज देयर। बेटा जी अगर मैं इसके अलोंग अपनी
मिरर को रखूंगी तो आई एम गेटिंग दिस वन शेप कि मुझे एक नीचे बेस में क्यूबिकल दिखाई दे रहा है एक साइड में, लेकिन मुझे तो इन बिटवीन क्यूबिकल चाहिए, तो आई कांट कीप ओवर देयर. सो नाउ आई विल टर्न माई पोजिशन. So my dear students, when I turn my position of the mirror in between now in this direction, I will getting the same. Have a look over there. So the mirror direction is clear to you now. You can mark the mirror position. So how you will mark? You will mark over there. You can make a. So the mirror position is here like this. I think now the mirror position is clear to all of you. You can try at your home using a small mirror.